other hand, these are deemed as the real elaboration of proceedings. And these are the provisions which are going to contain the detail. Okay. So to understand CPC, पहला काम क्या करेंगे? Divide CPC into sections and orders. Sections give you the principles of the framework, but not the details. Details are always going to be in the orders. ठीक है? And एक बात ध्यान रखना, almost every important section will have a corresponding order. Almost every important section will have a corresponding order. So how do you study CPC? You study the section and then go to the corresponding order. ठीक है? कैसे करेंगे CPC को? सेक्शन पढ़ेंगे और सीधा से corresponding order पे चले जाएंगे. CPC को कभी भी हम लोग सेक्शन वाइज नहीं पढ़ते हैं एंड हम लोग ऑर्डर वाइज भी नहीं पढ़ते हैं. ठीक है? कैसे पढ़ते हैं? We study the section and then directly jump to the corresponding order. That is the proper way of studying CPC. ठीक है? So let's look at some examples where a section has a corresponding order. Suppose हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं institution of suits का, right? Now for this we need section 26 and the order is order 4. So after section 26 we don't go to section 27, we directly go to order 4. The section is going to give us the principles of the framework. The details are always going to be in the orders. ठीक है? अब देखो 27 पे क्यों नहीं गए? Because section 27 to 32 is a different topic. This is summons, and for this we need order 5. So section 27 to 32 पढ़ने के बाद we don't go to 33, we go to order 5. ठीक है? अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आएगा कि section 33 में हम लोग क्यों नहीं गए? Because it is a different topic. This is judgment and decree. ठीक है? And for this we need order 20, right? इसके लिए हमें चाहिए order 20 चाहिए. ठीक है? So इसीलिए देखो यहाँ पर I can give you many more examples. जैसे मान लो sections 36 to 74 की बात अगर हम लोग कर लें, this is for execution, और इसके लिए जो order है corresponding order is order 21. ठीक है? यहाँ पर भी सेम चीज सेक्शन करेंगे और सीधा से corresponding order पे चले जाएंगे. नेक्स्ट, अगर मान लो हम लोग अपील्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज फर्स्ट अपील्स पढ़ रहे हैं, फॉर दिस वी नीड सेक्शंस 96 to 99 एंड द ऑर्डर इज ऑर्डर 41. ठीक है? अगर मान लो हम लोग सेकंड अपील्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, सो फॉर सेकंड अपील्स वी नीड सेक्शन 100 to 103 एंड द ऑर्डर इज ऑर्डर 42. अगर मान लो हम लोग लेट्स से अपीलेबल ऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, appealable orders, for this we need section 104 and the order is order 43. अगर मान लो हम लोग रेफरेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, so for reference we need section 113 and the order is order 46. अगर हम लोग रिव्यू का टॉपिक पढ़ रहे हैं, so for review we need section 114 and the order is order 47. ठीक है? There are many more examples जहां पर कि सेक्शन का एक corresponding order है. We have taken some examples. ठीक है? So याद रखना कि CPC को कभी भी हम लोग सेक्शन वाइज या ऑर्डर वाइज नहीं पढ़ते. कैसे पढ़ते हैं? हमेशा सेक्शन पढ़ेंगे, उसे corresponding order पे चले जाएंगे. और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर हम लोग मान लो कॉस्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, so for costs हम लोग को चाहिए section 35, 35A and 35B and the order is order 20A. अगर हम लोग commissions का टॉपिक पढ़ रहे हैं, so for commissions we need section 75 and the order is order 26. Interpreter suits अगर कर रहे हैं, section 88 order 35. Out of court settlement जो है वो हमारी section 89 order 10. ठीक है? Temporary injunction section 94C order 39. Receiver section 94D order 40. ठीक है? So there are many more examples where a section has a corresponding order. ठीक है? We have just seen few examples. ठीक है? So यहाँ पर ध्यान रखना कि कभी भी हम लोग इसे सेक्शन वाइज या ऑर्डर वाइज नहीं पढ़ते. कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन पढ़ेंगे और उसे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पे चले जाएंगे. ठीक है? बट एक बात ध्यान रखना कि सेक्शन ऑर्डर का कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑल्दो दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू डू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई भी रैंडम सेक्शन उठाओगे और उसे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पे चले जाओगे. ठीक है? दैट इज नॉट द प्रॉपर वे.
ठीक है, याद रखना कि इन सेक्शन ऑर्डर कॉरेस्पॉन्डेंस को भी हम लोग को एक पर्टिकुलर मैनर में पढ़ना होता है, और वो पर्टिकुलर मैनर क्या होता है? क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, हाउ डज एन ऑर्डिनरी सूट रन? ठीक है, एक ऑर्डिनरी सूट रन कैसे करता है? ठीक है, सो सबसे पहले क्या होता है? प्लेंटिफ आता है और अपनी प्लेंट फाइल करता है, दैट्स हाउ अ सूट स्टार्ट्स। ठीक है, याद रखना क्या होता है? सबसे पहले प्लेंटिफ आता है और अपनी प्लेंट फाइल करके सूट को स्टार्ट कर देता है। आफ्टर द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड हिज प्लेंट एंड स्टार्टेड द सूट, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है समन्स। ठीक है, जो ऑपोजिट पार्टी है डिफेंडेंट, उसके ऊपर समन्स जाते हैं। ठीक है, अब जब डिफेंडेंट के ऊपर समन्स सर्व हो गए हैं, देन ही फाइल्स हिज रिप्लाई व्हिच इज नोन एज द रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, A written statement is merely a reply to the allegations made in the plaint, बस उसमें और भी चीजें हो सकती हैं। अभी के लिए हम लोग ये देखते हैं कि WS होता है। अब देखो, प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट फाइल कर दी, तो ऑपोजिट पार्टी डिफेंडेंट उसने अपना WS फाइल कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है अपीयरेंस एंड एग्जामिनेशन, राइट? और ये एग्जामिनेशन होता है एक्चुअली एक ओरल एग्जामिनेशन। ठीक है, दोनों के रिटन सबमिशंस के बाद कोर्ट दोनों पार्टीज को बुलाती है और उनको ओरली एग्जामिन करती है टू अंडरस्टैंड द रियल नेचर ऑफ डिस्प्यूट। अब जब ये सब कुछ हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, अब कोर्ट जो है इश्यूज फ्रेम करती है। इश्यू फ्रेमिंग के तुरंत बाद हमारी ट्रायल स्टार्ट हो जाती है, ट्रायल और द हियरिंग। और ट्रायल के एंड में there will be a judgment and a decree। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना कि जजमेंट एंड डिक्री पास होना sufficient नहीं होता, because there are two courses of actions possible. The winning party would like to have the execution of the decree and the losing party would like to have an appeal, or he may also go